Here question is, let me join this person. Okay, here question is, find unit vector in the direction of vector A, that is I cap minus 2 j cap, that has magnitude 7 units. हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन जैसा इसके डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, लेकिन जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होना चाहिए. Now tell me, don't you think this question is confusing? Find a unit vector in the direction of. Okay, wait. This is a different question. Find a unit vector in the direction of. Sorry, this is not a unit vector. ये यहाँ पे cancel कर दो. This question is find a unit vector in the direction of. This is find a vector only. Here find a vector in the direction of. Now correct. Find a vector in the direction of vector this that has magnitude 7 units. यहाँ पे यूनिट वेक्टर था तो ये गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर बोल रहा है और लास्ट में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड 7 हो. दैट इज इम्पॉसिबल, नो. ठीक है, तो हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन एक के डायरेक्शन के साथ हो बट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज फर्स्ट फाइंड यूनिट वेक्टर. फर्स्ट फाइंड यूनिट वेक्टर of that vector along which the required vector direction is asked. ठीक है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग पूछ रहा है उस वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकालो. ठीक है, उसके बाद जितना मैग्नीट्यूड बोल रहा है उसको उतना से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1. अगर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोमेटिकली द मैग्नीट्यूड विल बी 7 यूनिट. So therefore here we can write vector A equal to I cap minus 2 j cap. Okay, so therefore this is unit vector, this is the symbol of unit vector. ठीक है, A के ऊपर कैप पहना दो, दैट इज यूनिट वेक्टर. इक्वल टू क्या हो जाएगा, I cap minus 2 j cap डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. ठीक है, अब कल बताया था मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसे निकालते हैं. आई कैप माइनस 2 जे कैप, कितना आ गया मैग्नीट्यूड इसका, अंडर रूट 1 प्लस 4 इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन अंडर रूट 5. ठीक है, दिस कैन बी सेपरेटेड एंड कैन बी रिटन एज आई कैप अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2 बाई अंडर रूट 5 इंटू जे कैप. यूनिट वेक्टर निकल गया. Therefore vector along vector A having magnitude 7 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन 7 इंटू यूनिट वेक्टर. therefore this will become 7 upon under root 5 I cap minus 14 upon under root 5 j cap. Okay, so this is my required vector. समझ में. Yes, sir. Okay. Next question is,
सो अब यूनिट वेक्टर निकालने को समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जस्ट उसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन मिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो राइट डाउन यूनिट वेक्टर, टू फाइंड यूनिट वेक्टर just divide the given vector by its magnitude. Okay, this one already you studied in previous classes. So let us see next question here. First we will write here one concept in note. If vector A is written in component form, vector A equal to, suppose if I am writing vector A equal to A I cap plus A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिखा है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस A1 A2 A3? Yes, tell me Samiksha, what is A1 A2 A3? Okay, component. Any other thing? Recall from IIT classes, what is this A1 A2 A3? Component तो है ही ये, this is the scalar component along x-axis, this is a scalar component along y-axis, this is a scalar component along z-axis. Apart from that, A1 A2 A3 also represent something. What is that? Very good, this is direction ratio. So जब ये कंपोनेंट फॉर्म में होगा तभी ये डायरेक्शन रेशियो होगा। then you can say A1 A2 A3 are डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर A, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो वेक्टर A इक्वल, अगर ऐसा लिखा हो L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप, so in this case this L M N, this is not direction ratio, this will be what? तब L M N क्या होगा? Direction cosine. Then here we can represent here L M N is direction cosine. Okay, it is not compulsory that always it will be symbolically represented by L M N only, sometimes it will be then also vector A cap. कहीं भी अगर हमें यूनिट वेक्टर दिख गया then the components of the vector will represent direction cosine. Suppose this is A I cap plus B J cap plus C K cap. In this case also, here in this case also A B C is DC of vector A. Okay, understood? Next question is find the unit vector in the direction of the sum of the vector. Find the unit vector in the direction of the sum of the vector A equal to 2 I cap plus 2 J cap minus 5 K cap and vector B equal to
2i cap plus j cap plus 3k cap। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। पहले तो इन दोनों का सम निकालना है। ठीक है, therefore वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनीवन, व्हाट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b? रसिका विल टेल, रसिका बताओ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा? रसिका टेल मी व्हाट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b? है या नहीं वहां पे? ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड। सो इट विल बी 4i cap प्लस 3j cap माइनस 2k cap। ओके, हमें मिल गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तब तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस वेक्टर से मतलब है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर along vector a plus vector b equal to what? 4i cap plus 3j cap minus 2k cap upon their magnitude। magnitude of vector a plus b क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 equal to, once right here, 4i cap upon how much it will come, 29, okay, plus 3 upon under root 29 j cap minus 2 by under root 29 k cap। okay, so this is the required vector। आया समझ में? okay, next question, see the question, write the direction ratio of the vector। you have to write the direction ratio of the vector I cap plus, sorry, I cap plus, this is only j cap, I cap plus j cap minus 2 k cap। ओके, इसका यूनिट, इसका सब लोग डायरेक्शन रेशियो कौन बताएगा इसका? तुषार पाटिल, टेल मी, तुषार पाटिल, टेल me direction ratio of this vector। 1 1 minus 2। okay, good, डायरेक्शन रेशियो। नाउ डायरेक्शन कोसाइन अब किसे बताना है? let me see who are present there। क्या सिद्धार्थ, डेली तुम लेट ज्वाइन करते हो? डायरेक्शन कोसाइन, ओके, ऋषिकेश, टेल मी डायरेक्शन कोसाइन। ऋषिकेश, टेल मी डायरेक्शन कोसाइन।
ऋषिकेश, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ तो बताओ डायरेक्शन क्वेश्चन बताओ इसका। टेल मी द डायरेक्शन कोसाइन। इधर पेज क्या पलट रहा है, इधर स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा है उस पे देखो ना, लास्ट ब्लैक कलर। बताओ डायरेक्शन कोसाइन। ओके अंकिता। ओके, वेरी गुड, that is direction cosine. So here you have to learn, if vector is given in component form, then their scalar component is direction ratio. If you have to find the direction cosine, then similarly we have to divide. मैंने क्या बताया, उसको यूनिट वेक्टर बना दो तो उसका कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। So here direction cosine, how you will find, here magnitude of vector A will be equal to what, under root 1 square plus 1 square plus 2 square. This will give you equal to 6. Okay, therefore direction cosine is I cap upon under root 6 plus 1 upon under root 6 j cap minus 2 upon under root 6 k cap, ठीक है। So here this is the direction cosine, here 1 upon under root 6, this is the डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये सब डायरेक्शन कोसाइन हो गए, क्योंकि अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर बन जाएगा तब जो कंपोनेंट है उसका वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज vector joining two points. So write down the next topic, next heading, write down vector joining two points. Okay, स्पेस में कहीं भी दो पॉइंट दे रखा हो, स्पेस, लेट मी ड्रा दी एक्स एक्सिस, okay, y एक्सिस, z एक्सिस से, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट दे रखा हो, एक पॉइंट यहाँ पे सपोज हियर इट इज गिवन here it is given p, this is let it be x2, sorry x2, y2 and z2, and here one point is given q, x1, y1, z1, ठीक है। तो इस वेक्टर p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, ओके। सिमिलरली here to here we will join,
this is the position vector of q and this is the position vector of p. ओके, तो अगर हमें वेक्टर पी क्यू निकालना हो, ठीक है, सी इफ यू हैव टू फाइंड वेक्टर पी क्यू हियर, अगर हमें वेक्टर पी क्यू निकालना हो, वेक्टर पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, q माइनस पी, ठीक है, वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू राइट q माइनस पी, ठीक है। सो हियर वेक्टर पी क्यू विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है। अगर यही पूछ दिया जाए वेक्टर QP निकालना है, वेक्टर QC both are different, direction is interchanged, so in this case it will be P minus Q, so it will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। तो समझ में आ गया, जब दो पॉइंट दिए हो और कौन सा वेक्टर पूछ रहा है तो कैसे निकालना है, ठीक है। हाउ टू फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग, क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट, P दे रखा है यहाँ पे 2 3 0 and Q is given here -1, -2, -4, directed from P to Q, directed from P to Q। अब बताओ तुम्हें PQ निकालना है QP निकालना है, PQ हमें निकालना है, क्योंकि ये हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है डायरेक्टेड फ्रॉम PQ, डायरेक्टेड फ्रॉम PQ। तब बताओ PQ क्या होगा, Amisha will tell this time, Amisha More, tell me what is PQ। Okay, and Samiksha will tell me vector QP। See here, vector PQ is equal to what? Vector PQ is equal to Q minus P करना है, तो -1 -2 will be -3 I cap, then -2 -3, so this will be -5 J cap। Okay, next -4 -0, so this is -4 K cap। Similarly, what will be vector QP? Tell me, Samiksha Jadhav। Okay, good। So here we have to do vector P minus Q हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, P minus Q करना है हमें। Here's what I found on the web. So here see 2 minus -1, this will become 3, this will be 3 I cap। Okay, next 3, I think Samiksha you said wrong, एडिशन हो जाएगा ना ये, 3 plus 5 J cap, here 0 minus -4,
this will become plus 4k cap. Okay, understood? समझ में आया? Okay, so next we will see next topic, section formula. Section formula in vector. So write down heading section formula. Section formula. When two vectors are there, see vector A. Suppose this is vector A and another vector. Then this is vector B. Okay, so this is vector A. This is vector B. This is vector A. This is vector B. Okay. अब दोनों वेक्टर को हम ज्वाइन करते हैं. इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है. We are going to join both the vector. Okay. Here this point is O. This is Q. This is P. So I'm going to join both the vector like this. Tell me. What? Yes, tell me. Am I audible or not? Okay, leave it. Suppose, so see, the position vector of Q is what? Position vector of Q is represented by here. See, हमें क्या समझाना है हमें? Position vector of Q is represented by vector B or not? We can say it is OQ. So OQ is represented by vector B, and position vector of point P, ठीक है, is represented by OP. That means vector A. तो Q का पोजीशन वेक्टर कौन बता रहा है? वेक्टर B. P का पोजीशन वेक्टर कौन बता रहा है? वेक्टर A. तो इसी तरह से मान लो P और Q के बीच में कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे. सपोज हियर एनी पॉइंट इज देयर R. तो ये R का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. ओके, हियर वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R. We have to find the position vector of R vector. ठीक है, तो सपोज ये R जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है M is to N में. ठीक है, सपोज दिस इज हियर, दिस इज M एंड दिस इज N. तो हमें ये R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q is vector B. ठीक है, position vector of P is vector A. So what we have to find? We have to find the now we have to write here. Hello, sir. Yes, tell me. Sir, हाँ बोलो, क्या हुआ? your voice is breaking. Oh, my voice is breaking. Hello, sir. Yes, yes. Now tell me. अभी भी ब्रेक कर रहा है क्या?
Okay, just listen and tell me whether it is breaking now also. See, I said this Q and P are 2 points located somewhere in space whose position vector is given by vector B and vector A respectively. ठीक है, वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर B है और वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है। PQ जो लाइन ज्वाइन किए हम, ठीक है, इसको हम वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग जो PQ है ना, R इज एनी पॉइंट इन दैट लाइन, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है वो इंटरनली किसको, PQ को, ठीक है। So we have to find the position vector of R here. So we have to find position vector of R here. So question is here, find position vector of R, ठीक है, इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। ओके, so let us represent this by small r, ठीक है। Okay, so now see, here I have shown the direction also here. This is this direction, here vector R means this direction, and this is this direction. Okay, so now see in triangle, okay, before going to triangle, just see here can I write PQ, not PQ, can I write PR upon RQ equal to, what is PR? PR is M upon N. लिख सकता हूँ या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकता हूँ ना। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, N इंटू PR इक्वल टू M इंटू RQ, ठीक है। ओके, अब नाउ सी इन ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल देखेंगे पहले, Q और OQR इन ट्राइंगल OQR, जस्ट फोकस इन ट्राइंगल OQR। ओके, तो इसमें ट्राइंगल लॉ अगर हम लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो देख लो वेक्टर R प्लस वेक्टर RQ इक्वल टू वेक्टर B मिले, होगा या नहीं होगा, देखो जरा। वेक्टर R, हियर इज वेक्टर R Yes, sir. प्लस वेक्टर QR, और नो सॉरी वेक्टर RQ, वेक्टर R प्लस वेक्टर RQ इक्वल टू वेक्टर B, होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यहां से हमें वेक्टर RQ निकालना है, तो वेक्टर RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर R, सर नो होगा, ठीक है। सिमिलरली वी विल सी इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे, कैन गिव एनी नेम, OPR लिख दो, ट्राइंगल OPR, ठीक है। इसमें अगर ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर A प्लस यहाँ पे वेक्टर PR इक्वल टू वेक्टर R मिलेगा यहाँ पे, यस। अब यहाँ पे वेक्टर PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कैन राइट वेक्टर R माइनस वेक्टर A, यस और नो, मिलेगा। अब देखो हमें जस्ट फोकस हियर, हमें वेक्टर RQ मिल गया, वेक्टर PR मिल गया। अब ये दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग, मैं लिखता नहीं सब्स्टिट्यूटिंग वगैरह क्योंकि स्पेस इज नॉट देयर, सो जस्ट यू listen that I'm going to substitute. So see,
So I can write vector n into PR. What is my PR? क्या मिला यहाँ पे? Vector R minus vector A equal to क्या? M into RQ. RQ क्या? देखो RQ is vector B minus vector R. ठीक है, अब बताओ हमें निकालना क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ R निकालना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिस इज नॉट क्वेश्चन, जस्ट आई रोट हियर। हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल r से, ये वेक्टर R से, ठीक है। मतलब हमें ये वेक्टर को निकालना है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी n r वेक्टर माइनस n इंटू a वेक्टर इक्वल टू m इंटू b वेक्टर माइनस m इंटू r वेक्टर, ठीक है। अब ये r वेक्टर को हम एक साइड लेके आते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? n r वेक्टर प्लस m r वेक्टर, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे तो दैट विल बी m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a, ठीक है। यहाँ पे r कॉमन, वेक्टर r कॉमन, सो हियर विल बी n प्लस m इक्वल टू m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a। therefore here वेक्टर n वेक्टर r इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? दिस इज m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन n प्लस m। this result give the position vector of R when here vector R divides internally, line joining PQ is divided by vector R internally, ठीक है। if you want to write you can write, लिख लो अभी। Similarly you can solve for externally also। externally में कुछ नहीं आएगा, just sign will change there, okay। here in externally only the sign will change and nothing else will happen, okay। here in externally, similarly try yourself, similarly when vector R bisects externally, then position vector of R is vector R equal to, see here, m vector b minus n vector a, here will be m minus n. Actually here also it will be m minus n, or m plus n, or m, here no problem, but here it will be m minus n. So keep in mind both, okay। now we'll solve one question based on this। one thing, let me take the attendance। Amisha More, Kajal it means Tushar Patil, Yes, sir. Rasika Patil, Ankita Namatre, Rusikesh, Yes, sir. and this is Samiksha, Subham,
Okay, very good. So next I'm going to solve question based on this. Okay. Question is, okay, before going to the question, from कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम इतना बता सकते हो, अगर r जो है मिड पॉइंट पे लाई करे, रिमेंबर अगर r जो है मिड पॉइंट पे लाई करे तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? Yes, if r is the midpoint of PQ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? m इक्वल टू n. अब जब m इक्वल टू n होगा, therefore पोजीशन वेक्टर r, और we can say वेक्टर OR is given as equal to what? वेक्टर A plus वेक्टर B by m plus n. m और n कितना है? 1 1. So 1 plus 1 equal to 2. Okay. This is the condition. Midpoint. Okay. Question is, consider 2 point P and Q with position vector C. PV position vector PV of Q is given here. PV of Q, that is OP equal to given 3 vector A minus 2V vector and OQ equal to vector A plus vector B. Find the position vector. Question is, find position vector of R dividing the line joining P and Q in the ratio 2:1. Ratio is given 2:1, that is m is to n equal to given how much? 2:1. तो पहला हमें फाइंड करना है OR इंटरनली. OR इंटरनली क्या होगा बताओ? इक्वल टू, फटाफट यहाँ पे क्या लिखना है? वेक्टर ए. m है तो c. जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज. पहले इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है? क्या बोल रहा है? ओ तो यहाँ पे है, ओ पी P will be here, Q will be here, ठीक है? ऐसा लाइन ज्वाइन किया हुआ है. दिस इज Q, ठीक है? और ये PQ यहाँ पे कोई पॉइंट है R, ठीक है? 2:1 रेशियो में बता रहा है. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, ठीक है? तो हमें ये निकालना है, ठीक है? 2:1. तो हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला पे? m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n, ठीक है? m हमारा क्या है यहाँ पे? व्हाट इज m नाउ हियर? टेल मी. 2. m is 2 here, so we will write here 2. and वेक्टर b means अगर m हम इसके अपोजिट वाला वेक्टर लेंगे, सेम वेक्टर नहीं लेंगे, इसलिए बोला पहले डायग्राम बनाओ और विल बी कंफ्यूज्ड, ठीक है? दिस इज माय m, दिस इज n. तो अगर m ये है, देन विल टेक दिस वेक्टर हियर. तो ये वेक्टर कौन सा है? OQ मीन्स दिस वेक्टर. सो 2 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है? प्लस
एन कितना है 1 1 इनटू वेक्टर ए, एन कहाँ है, दिस इज एन, इसके अपोजिट वाला वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर, तो ये कौन सा वेक्टर है, पी, ओपी मीन्स दिस वन, सो 3a वेक्टर माइनस 2b, ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n that is 3, but first simplified 2a and here 3a, total we will get 5a, so 5a on here 2b and minus 2b and minus 2b तो कैंसिल हो गया पूरा, so 5a by 3, this is the position vector OR, समझ में आया, ठीक है। अब फिर से इसका ही हम क्या निकालेंगे, एक्सटर्नली, OR एक्सटर्नली, अब एक्सटर्नली में देखो डायग्राम कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डायग्राम, तुम बिना डायग्राम के बना सकते हो लेकिन थोड़ा सा क्या होगा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। एक्सटर्नली का मतलब क्या आता है, ये पॉइंट तो वहीं पे रहेगा, O यहाँ है, P यहाँ पे है, ठीक है, और Q यहीं पे वहीं के वहीं रहेगा, ज्वाइन करते हैं इसको OP, दिस इज OQ, ठीक है। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है PQ, ठीक है, तो जो R पॉइंट है इस यहाँ पे लाई नहीं करेगा, कहीं इधर एक्सटर्नली लाई करेगा इधर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सपोज R है, ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, हियर, ठीक है, सो एक Q का पोजीशन वेक्टर क्या हमें यहाँ पे लिख लेना है, OQ क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, P का क्या है यहाँ पे 3 वेक्टर A माइनस 2B, ठीक है। अब M/N में हमें कंफ्यूजन ये होगा, M क्या है, दिस लॉन्गर, ये जो होगा हमारा, दिस विल बी M एंड दिस स्मॉलर, दिस विल बी माई N, ये होता है M/N इसमें, इस केस में, ठीक है, ओके। सो हियर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस N, ओके। सो सिमिलरली M लिखेंगे, वेक्टर B कौन सा है, M जो है, ठीक है, इसके अपोजिट वाला वेक्टर, so we will write same, see here vector A plus vector B, sorry M तो दे रखा है ना, M is equal to 2, so here write here 2 minus N is 1, so no need to write, and 3A vector 3A minus 2B upon M minus N is 1, so equal to कितना आएगा यहाँ पे देखो, 2A and minus 3A कितना आ गया, minus A, then 2B and plus 2B, so it will be 4B upon, just इतना ही हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। एक्सटर्नली और इंटरनली 1 मार्क्स का पूछता है, 1 to 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। Still time is there, so we will solve one more question. Question is, so that the points A, B, C are the vertices of right angle triangle. हाँ, ये कैसे निकालोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, वर्टिसेस दे रखा है किसी ट्रायंगल का, ये क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, and B is given I cap minus 3 j cap minus 5 k cap, and C is given here 3I cap minus 4 j cap minus 4 k cap are vertices
ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है, नहीं ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एनीवन कैन टेल मी हाउ वी विल प्रूव? अरे वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल क्या होता है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लो यार। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं है ये ऐसा ही होगा, जस्ट इमेजिन। तो हमें क्या है, हाउ वी कैन शो दैट इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और इट इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे बोल सकते हैं? जब एनी साइड, if a square of any side, a square of any side is equal to sum of the square of remaining two sides, ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, यही तो करना है। अब स्क्वायर ऑफ एनी साइड, हमें साइड निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सपोज ये तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है सिर्फ ए का और बी का, तो हमें क्या निकालना हो? ए बी अगर निकालना हो, पहले हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा। और वेक्टर ए बी फाइंड करने के लिए वेक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए देखो यहाँ पे, कंसंट्रेट हियर, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या आ गया? माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। सिमिलरली -3, अरे बाबा -1, हाँ सेकेंड में जे कैप के लिए -3 -1, सो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे? +1, so this will become here -2 j cap, and then -5 -3, so this will become -8 k cap। ये हमारा वेक्टर ए बी हुआ। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ए बी मिल गया, इसी तरह से हम बी सी भी निकालेंगे, बी सी। अब बी सी क्या होगा? सी माइनस बी, तो क्या होगा? 3 - 1 इक्वल टू 2 आई कैप, -4 minus minus +3, so this will become minus j cap. Now -4 here, minus minus 5, so this will become how much? +1 k cap. Please concentrate, if I am wrong just tell me। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या करना है, क्या निकालना है? ए सी निकालना है। ऐसा नहीं कि ए बी निकाला, तुम बी ए भी निकाल सकते हो, देयर वोंट बी एनी चेंज, ठीक है। ए सी निकालता हूँ, चेंज सिर्फ डायरेक्शन में होगा, बट हमें तो अब मैग्नीट्यूड से लेना देना है, ठीक है। वेक्टर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस ए, so 3 - 2 that is I cap, -4, so here this will become +3 j cap, here -4 and -3, so -7 k cap, ठीक है। -4 and here -3 AC ना, so yes, 4 and 3 7 k cap, okay, okay। So once again check it, my AB is, vector AB is -1, vector A is 2i cap minus j cap plus k cap, vector B is I minus 3 j cap minus 5 k cap, okay, vector C is 3 -4 and -4 k cap। So I A B B C C A मिल गया मुझे, ठीक है। हाँ, AC
-4 and minus, yes, here it will be only, see, -4, and so here only Jacob will be there. Okay, correct. और बाकी सब ठीक है. So we have to find the, हमें AB स्क्वायर निकालना है. ठीक है, AB कितना -3. Okay, so here will be -3. Okay, -3. ठीक है, इसको अच्छा से लिख देता हूँ. लेट मी, oh sorry, टाइम इज वेरी लेस. सो व्हाट वी हैव टू डू, देखो यहाँ पे माइनस, हमें तो वही प्रूव करना, हो रहा है नहीं हो रहा है. ए बी फाइंड करो पहले. ए बी कैसे फाइंड करोगे, ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, सबका स्क्वायर निकालो. ए बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा वहां से. सो 1 + 4 + 64. So this is how much, 69. Okay, here BC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, here 4 + 1 + 1 = 6 है. ठीक है, एंड AC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 + 9 + 49. ठीक है, 49 and 1 50, 50 and 59. So 59 तब तो आ नहीं रहा है. Then there will be miss. Then AB और BC में, AB BC निकालने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा. Check it. It means you understood the process ना. हमें AB निकालो, BC निकालो, उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा. ठीक है, AB once again let me check, but 1 - 2 minus correct here, -3 minus correct here, -5 -3 correct. AB तो सही है. BC 3 - 1 2 -4 -3 -4 -3 करेक्ट. -4 प्लस करेक्ट है ना. ओके, विल सी यू टुमारो. Solve this question. Take this as a homework. Take this as a homework. We will see you on next class. We will see you on next class.